Hello everyone. Today I am going to discuss about the international staffing and compensation decision. This is a part of international business syllabus. In international staffing, we are going to discuss how we recruit the HR in the international level. What are the problem they are facing when we are going to place the person in international job or international. That person is known as the expatriate. So let's start with the topic. HRM. HRM is very important part when we discuss about any organization, any company. And when we discuss about the international business, HR plays a very important role because everything is dependent upon the human resource in the organization. Global human resource management is related to selection of workforce for various jobs who have required skill for performing the job. Global human resource management means that is related to the selection of workforce for various jobs, various kind of assignments who have required skill for performing the job. Global HRM sometimes refers to global human resource management, sometimes refers to global HRM, is an umbrella term that include all things related to whether that is organization HR, whether that is we are discussing about the compensation payroll, whether we are discussing about the talent management process, like all the things operating at a global scale related to HR, that is known as the global HRM. When we discuss about the global HRM, like the international staffing, the decision of international staffing in the MNCs depends upon the following factors. When we appoint the person beyond the boundaries, like one parent company is there and the company give assignment to the employer to other nation regarding the various position, that is known as the international staffing. In this, various factors are there. First one is general staffing policy on key position in headquarters and subsidiaries. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज़ द की पोजीशन ऑफ द पर्सन, इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द पर्सन. सेकंड इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द राइट कैंडिडेट. नेक्स्ट वन इज द मेन प्रॉब्लम इज देयर प्लेस बाय होस्ट गवर्नमेंट ऑन हायरिंग पॉलिसीज, like where we want to place the employee, like in which country, what are the policy of the government in that country, that is the main problem. Now, when we discuss about the factors, some of the approaches, like we have discussed about the approaches, there are 4 approaches in the international market regarding the IB, that is ethnocentric, polycentric, regiocentric and geocentric. But when we discuss about the staffing, we have to discuss about the 3 orientation here. First one is ethnocentric, second is polycentric, third is geocentric. Ethnocentric approach, what is the meaning of this approach is that ethnocentric staffing policy, all key position in the foreign subsidies are filled by the home country. देखो एथनोसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी क्या होती है, यानी कि हम अपनी होम कंट्री के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ये होता है एथनोसेंट्रिक. जब हम इसे स्टाफिंग के साथ जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फॉरेन सब्सिडी के अंदर पोजीशंस है, यानी कि जो आपका सब्सिडीज़ है फॉरेन कंपनी में है, उसके अंदर जिसको भी हम रिक्रूट करेंगे वो होम कंट्री ही रिक्रूट करेगा. ठीक है. द एथनोसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी इज इफेक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इज नॉट देयर इन द होस्ट नेशन. एथनोसेंट्रिक स्टाफिंग हम कब करेंगे, जब होम कंट्री से ही हम सारी की सारी पोजीशन फॉरेन कंट्री की फिल करेंगे. जब करेंगे जब हमें एक्सपर्टाइज नहीं मिलता होस्ट नेशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, दिस पॉलिसी वॉज ओरिजिनली बाय द फिलिप्स, सैमसंग, विप्रो एक्सेट्रा. एथनोसेंट्रिक अप्रोच रीज़न, लाइक जब हम अपने होम कंट्री से ही अपनी होस्ट कंट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे लेके जाएंगे, कई सारे रीजंस उसके पीछे होते हैं. हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा रहता है, कंट्रोल हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे रहेगा, कॉर्पोरेट कल्चर हमारा लिंक करेगा उस कॉर्पोरेट से, लाइक हेडक्वार्टर से हमारी सब्सिडीज़ का कल्चर लिंक करेगा. अ डिज़ायर टू ट्रांसफ़र पेरेंट फ्रॉम कोर कॉम्पिटेंसी टू फॉरेन सब्सिडीज़, जो हमारा कोर कॉम्पिटेंसीज़ है वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे. अब इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या रहेंगी, कंट्रोल रहेगा, कोऑर्डिनेशन वहाँ पे रहेगा. ठीक है.
प्रॉमिसिंग मैनेजर्स आर गिवन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उन्हें वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं कहीं ना कहीं हम उनको लेके चलेंगे मार्केट के अंदर, बिकॉज द स्टाफ इज़ फ्रॉम द होम कंट्री। अब इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, जो एक्सपेट्रिएट है यानी कि जो पर्सन पेरेंट कंपनी का एम्प्लॉय सब्सिडी में वर्क करने जा रहा है, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे एक्सपेट्रिएट। जब वो वापस आता है तो हम उसको बोलते हैं रीपेट्रिएट। ये आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि पेरेंट्स कंपनी से जब सब्सिडी में कोई भी पर्सन काम करने जाता है, फॉरेन कंपनी में कोई भी काम करने जाता है, तो उसको हम एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। जब वो पर्सन वापस आता है तो हम उसको रीपेट्रिएट बोलते हैं। द adaptation of the expatriate manager to new environment take time during which these expatriate make poor decision। यानी कि जब भी कोई पर्सन अपनी कंट्री से बाहर जाता है तो उसको वहाँ की सराउंडिंग में अडेप्ट होने में टाइम लग जाता है और उसके कारण वो पुअर डिसीजन भी ले सकता है, ठीक है। और जो मेन डिमेरिट क्या है, जो एक्सपेट्रिएट है, जो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है असाइनमेंट के ऊपर, उसको 4 टाइम ज़्यादा उन्हें वहाँ पे इनकम पैकेज देना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो एक्सपेट्रिएट होते हैं फेल हो जाते हैं किस चीज़ में, उनके जो होस्ट कंट्री का कल्चर है, लैंग्वेज है, वर्किंग स्टाइल है, इन सबको समझने में। तो दीज आर द डीमेरिट्स व्हेन वी अपॉइंट अ पर्सन फ्रॉम द होम कंट्री टू होस्ट कंट्री। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, वी हैव टू जज ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स व्हेन द पर्सन गोइंग फ्रॉम द पेरेंट टू सब्सिडी। अब सेकेंड अप्रोच हमारी क्या कहती है, वो है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि होस्ट कंट्री में होस्ट कंट्री के ही नेशंस को हम वहाँ पे अपॉइंट कर दें, जो भी मेन पोजीशंस है, यानी कि हम होम कंट्री से उन्हें अपॉइंट वहाँ पे नहीं करें। यानी कि होस्ट कंट्री में आर अपॉइंटेड एट ऑल पोजीशन, जो भी उनके नेशनल्स होंगे उन्हीं की पोजीशंस पे हम वहाँ पे कर देंगे जो भी की पोजीशंस हैं, ठीक है। हम अपनी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को वहाँ नहीं भेजेंगे। कौन कौन सी कंपनीज इसे फॉलो कर रही है, जॉनसन एंड जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स। अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसी कंट्री के पर्सन को अपॉइंट कर दिया, तो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्सपेट्रिएट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी फैमिली को सेट करना, उसको कल्चर अवेयर कराना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेक्स एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें उसे 4 टाइम पैकेज वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो गिव कंटिन्यूटी टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडी। सो इससे क्या होगा, जो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से किसी पर्सन को लेके जाते हो तो उसको वहाँ सेट होना, उसका अडेप्टेशन प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। अगर वहीं से अपॉइंट करते हैं तो हमें ऐसी टर्नओवर वाली कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन इसकी भी डीमेरिट्स हैं पॉलीसेंट्रिक की। इसकी डीमेरिट्स क्या रहेंगी, अब वहाँ पे क्या रहेगा कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक गैप आ जाएगा हेडक्वार्टर और सब्सिडी के अंदर। कंट्रोल यहाँ पे लेस रहेगा क्योंकि वहीं के पर्सनस को हम वहाँ पे अपॉइंट करने। एथनोसेंट्रिक अप्रोच की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कंट्रोल हमारा कम रहेगा, ठीक है। अब जो लोकल मैनेजर हम उसी कंट्री से ले रहे हैं, मे बी दे आर लेस टैलेंटेड एज कंपेरिजन टू द होम कंट्री एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो भी मैनेजरियल पोजीशन है उनके नहीं वहाँ पे हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ टैलेंट दैट इज़ इन द होम कंट्री एम्प्लॉयज़। अब बात आती है थर्ड अप्रोच की। हमने अब पढ़ा एथनोसेंट्रिक, पढ़ा पॉलीसेंट्रिक, पढ़ा, अब आती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियो मीन्स इसके नाम से ही पता चलता है जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। दिस अप्रोच यूटिलाइज द बेस्ट पीपल फॉर की जॉब्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उन पे टॉप मोस्ट लोग बैठे, एजुकेटेड लोग बैठे, जो इनके पास टैलेंटेड लोग बैठे हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि उसे हम होम कंट्री से लेके जा रहे हैं, होस्ट कंट्री से लेके जा रहे हैं, या किसी थर्ड कंट्री से हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दी है। अब इसकी मेरिट्स क्या हुई, ठीक है। जो MNCs है वहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव टीम को तैयार करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो पॉलीसेंट्रिक के ड्रॉबैक्स थे, यानी कि हम उसी कंट्री में अगर लेके जा रहे हैं तो हमें टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे हैं, जब जो भी सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर ऑफ पॉलीसेंट्रिक, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि हम होम कंट्री से नहीं लेके जा रहे हैं, होस्ट कंट्री में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से भी पर्सनस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको रीलोकेट, मैंने अभी रीपेट्रिएट बताया था कि उन लोग को जो जहाँ से भी हम अपॉइंट करेंगे उनको वापस उनकी पोजीशन पे की पोजीशन पे भेजना। दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इससे क्या होगा, रिक्वायर मोर सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ स्टाफिंग, यानी कि
ज़्यादा हमें वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक डीमेरिट्स रहेंगी, क्योंकि अगर होम कंट्री से एम्प्लॉय को भेज रहे हैं एथनोसेंट्रिक में तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, लेकिन जियोसेंट्रिक में अगर हम कहीं से भी एम्प्लॉयज़ को वर्ल्ड लेवल पे लेके चल रहे हैं तो हमारा कंट्रोल वहाँ पे कम रहेगा। अब बात करते हैं, जब भी वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बीइंग विद ह्यूमन रिसोर्स, वी डिस्कस अबाउट द कंपनसेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मोटिवेट द वर्क फोर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनसेटिंग द एक्सपेट्रिएट, कि उसका कंपनसेशन पैटर्न क्या होगा। इससे मेन होता है जो वर्क फोर्स होता है वो मोटिवेट ही इसी के बेस पे होता है। अ कंपनसेशन प्लान शुड हैव दीज एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? लिविंग वेज की हम इसमें बात करेंगे। प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर अटेनिंग कंपनी गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे? जो कंपनसेशन हम उन्हें दे रहे हैं उनके मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क प्लेस, टू अट्रैक्ट द स्किल एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कंपनसेशन अच्छा रखेंगे, यानी कि सैलरी पैकेज अच्छा रखेंगे, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, तो हमारा इमेज वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। स्किल टैलेंटेड एक्सपीरियंस वर्कफोर्स हमारे पास आएगा। मोटिवेशनल फैक्टर उन लोगों के लिए वहाँ पे रहेगा बिकॉज ऑफ द गुड कंपनसेशन। अब कंपनसेशन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? यहाँ पे एक्सपेट्रिएट आ जाएगा, EXPAT, एक्सपेट्रिएट। ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे? सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए जब भी हम दूसरी कंट्री में असाइनमेंट लेके चल रहे हैं, मोटिवेशनल होना चाहिए, सिंपल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, दैट इज़ क्लियर टू यू कि हाउ मच मॉनेटरी एंड हाउ मच नॉन मॉनेटरी बेनिफिट इन योर हैंड। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जो आपका नेचर ऑफ जॉब है उससे लिंक करना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे आपका वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पेमेंट मिलना चाहिए। आपका जॉब कैसा है, हर टाइम स्टैंडिंग जॉब है, सिटिंग जॉब है आपका, ठीक है, मार्केटिंग वाला जॉब है, HR का जॉब है, ऑपरेशन जॉब है, उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए और टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। दीज आर द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक्सपेट्रिएट सिस्टम। अब इसके अंदर हम क्या क्या लेके चलेंगे? बेसिक सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, जैसे हम कहते हैं ना डियर अलाउंस अलाउंसेस हो गया, ठीक है, बोनस हो गया, फॉरेन सर्विस प्रीमियम हो गया, ये सारे के सारे पार्ट है कंपनसेशन प्लान के। अब जब भी हम कंपनसेशन की बात करेंगे, एक्सपेट्रिएट की बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात भी करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो गया? जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम अप्रेज करेंगे सिस्टमेटिकली वे में, टाइम टू टाइम। इसके क्या स्टेप्स रहते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स बना देंगे। फिर जो एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको हम वहाँ पे जज करेंगे, दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू गो फॉर द अप्रेजल टाइम टू